اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین سیما بقیت اللہ الاعظم ارواحنا لہ الفدا واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد کتب امامنا حجت بن الحسن العسکری امام زماننا حاذا بخطہ الشریف الی المرجع الدینی الاصفہانی وکتب اجعل مجلسک فی دہلیز البیت فاقض حوائج الناس صلوات۔ قابل قدر علامہ الحاج سید فرد حسین موسوی صاحب قبلہ، سادات کرام، مومنین مومنات، حسینیہ مسجد اور عزا خانہ زہرہ پاسمور ٹورنٹو کینیڈا میں ہماری گفتگو ایام رمضان المبارک میں آج 5ویں دن سے زمانے کے امام کے بارے میں ہو رہی ہے۔ آج کلیم اللہ اور ان کی فیملی کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی مجلس رکھی ہے، اس لیے کہ عموماً اس شہزادی کا ذکر کم ہوتا ہے۔ اللہ انہیں بھی اجر دے، آپ کو بھی اجر و جزا مرحمت فرمائے، ان کے مرحومین کی بھی مغفرت ہو۔ کل جو بانیان تھے اقبال خان فیملی، ان کے مرحومین کی خاص طور پہ حسینی بھائی کی اللہ مغفرت فرمائے، آپ سب کے حسینیہ کے تمام خدمت گزاران کے مرحومین و مرحومات کی اللہ مغفرت فرمائے۔ آج جس توقیع مبارک کا اقتباس میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ بہت پرانی توقیع نہیں ہے، یہ حال کی ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ ابو الحسن اصفہانی کو امام زمانہ نے خط لکھا اور اس میں لکھا کہ وَجْعَلْ مَجْلِسَكَ فِي دَہْلِیزِ الْبَیْتِ، اے ابو الحسن اصفہانی، تم دروازے میں، گھر کے دروازے میں بیٹھ جایا کرو، وقض حوائج الناس، اور ہمارے شیعوں کی مشکلات کو حل کیا کر۔ یہ 22واں ذریعہ آج مل گیا۔ اگر کوئی شخص اپنی شخصیت کو بہت وزنی نہ بنا لے کہ ہٹو بچوں کے ذریعے ملاقات ہو اور وہ شیعیان علی کے مسائل اور مشکلات کے حل کی کوشش کرے، تو وہ توجہ ہے حضرت حجت ابن الحسن کے قابل ہو جاتا ہے۔ بہت آسان نسخے ہیں مگر بہت ضروری، کیونکہ ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ 10 سیشنز میں، جو کہ چھوٹے سیشن ہیں، ہاف این آور یا لیس دین ہاف این آور کے، کم از کم اپنے اذہان میں ایک فکر ڈیولپ کر دیں کہ ہماری زندگی کا جو اصل مقصد انتظار الفرج ہے، اس میں ہم حضرت حجت ابن الحسن کی خدمت میں توجہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ تشرف ہو یا توجہ ہو، کون سے ایسے ذرائع ہیں جن کے ذریعے ہم نرجس کے لال کا تقرب حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر ہم مورد توجہ ہے
हजरत हुज्जत करार पा जाएं तो फिर हमारी जिंदगी का असल हदफ पूरा हो जाएगा। एक अहम इशू और जो मैं आज रेज करना चाह रहा हूं, जो 2 दिन से नहीं पहुंच पा रहे थे, हमारे उस्ताद बुजुर्गवार हजरत आयतुल्लाह उज़्मा अबुल माली शहाबुद्दीन नजफी मरअशी, इनका मुख्तसर तारुफ ये है कि 70 साल इन्होंने बीबी मासूमा कुम के हरम में नमाज पढ़ाई है और एक दिन भी नागा नहीं किया, पूरे 70 साल। हमें भी जितना अरसा हम वहां रहे उनके पीछे नमाज पढ़ने का शरफ हासिल हुआ। फजर की नमाज और मगरिबैन की नमाज, ये 2-3 नमाजें बिलअखस आगा साहब वहां पढ़ाया करते थे और दफन भी मालूम है कि वो अपनी वसीयत के मुताबिक दफन किए गए। मेरे एक शागिर्द थे जो वहां के मासूमा कुम के रोजे के चीफ खादिम बन गए थे, आगाए रजवी, सैयद हुसैन रजवी। उन्होंने मुझे बताया कि मैं यहाँ पर 20 साल से हूँ। मैं देखता था कि फजर की नमाज के लिए जब हम दरवाज़ा खोलते थे तो कोई शख्स अबा को अपने सर पे ओढ़े हुए आता था और कोने में खड़ा हो जाता था। जैसे जैसे ज़ाहिर अंदर जाते वो ज़ाहिरीन मासूमा की जूतियां जोड़ता था। 20 साल के बाद मैंने एक दिन उस शख्स को पकड़ लिया कि इस नेक इंसान को देखूं कि ये कितना शरीफ आदमी है कि जो बगैर अपना तारुफ कराए हुए मासूमा कुम के रोजे के ज़ाहिरीन की जूतियां जोड़ता है। तो जब मैंने उनको पकड़ा और उन्होंने अबा हटाई तो पता चला ये मुज्तहिद आज़म मरजा खलाइक नाइबुल इमाम आयतुल्लाह उज़्मा शहाबुद्दीन मरअशी नजफी। ये उनके तवाज़ो का आलम और ये उनकी नेकी का आलम। उनके बारे में उन्होंने खुद ये वाक़या इरशाद फरमाया। अब तो एक किताब भी आ गई है, तशर्रुफात मरअशिया, ये किताब अब छप गई है में। उसमें भी ये वाक़या जो आज अर्ज कर रहा हूं मिन्नो अन लफ्ज़ ब लफ्ज़ उसमें मौजूद है। आगा फरमाते हैं कि जब मैं अवाइल तलबगी में इस दिवाज से कबल जवानी में नजफ में पढ़ता था तो मैंने सोचा कि मैं 40 शबहाए चहारशंबा मस्जिद सहला में जाऊं ताकि इमाम ज़माना की खिदमत में शरफयाब हूं और उनका चेहरा देखूं। मैंने पूरा साल लगा दिया। जहन से ही उतर गया कि आखिरी शब चहारशंबा वो थी जिसमें बहुत सख्त सर्दी, तूफान बादो बारां के साथ बर्फ भी पड़ रही थी। मैं निकला और जब मैं भीग गया तो मैंने वापस जाने का इरादा किया कि आज अपने मदरसे में चला जाता हूं, अगली शबे चहारशंबा में चला जाऊंगा। चंद कदम चला ही था कि पीछे से मुझे किसी शख्स ने दराज कामत अरब ने आवाज दी और सैयद कह के मुझे पुकारा। बाज़ औकात उनको शहाब कह के भी पुकारा है उन सैयद ने जिनका जिक्र कर रहे हैं, और सैयद कह के भी पुकारा है। तो मैं हैरान हुआ कि ये इस तारीकी में मुझे कैसे जानते हैं कि मैं सैयद हूँ। जाहिर है कि तारीकी थी बहुत, कोई आसार तो नज़र आ नहीं रहे थे। तो मुझसे पूछने लगे कहाँ जाने का इरादा है। तो मैंने कहा कि इरादा तो सहला का है मगर सहला जा नहीं पाएंगे। तो वो कहने लगे मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, कंपनी देता हूँ, तुम मेरे साथ चलो, हम दोनों चले जाते हैं। तो मैं इस वजह से भी कि एक साथी मिल गया है और खौफ नहीं रहेगा, मैं उन अरब के साथ चल पड़ा। रास्ते में गुफ्तगू होती गई। मस्जिद ज़ैद इब्ने सौहान में पहुँचे, उन्होंने 2 रकत नमाज पढ़ी।
ये आप मसाला भी शरीयत का सुन लीजिए कि जब कोई मस्जिद बन जाए तो उसमें जब आप तशरीफ लाते हैं तो 2 रकत नमाज तहिया मस्जिद आपको पढ़नी होती है। अगर आप यहाँ हुसैनिया मस्जिद में नहीं पढ़ते हैं तो आज के बाद ये शुरू कर दीजिए। एक मरतबा यानी 24 घंटे में एक मरतबा जब आप एंटर होंगे तो 2 रकत ये हाईली रिकमेंडेड है। और ये तहिया मस्जिद है, यानी मस्जिद पर आप सलाम करते हैं और आप खुशकिस्मत हैं, अल्लाह मस्जिद के बिहाफ पर आपको जवाब देता। तो वो नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद वो जो मेरे साथी थे वो दुआ पढ़ने लगे। उन अरब ने जब दुआ पढ़ी तो आयतुल्लाह फरमाते हैं कि मैं हैरान हुआ कि उनके साथ मस्जिद के दरो दीवार भी, छत भी दुआ पढ़ रहे थे। सारी तरफ वही दुआ गूंज रही थी जो ये पढ़ रहे थे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मस्जिद से हम बाहर निकले तो अभी मगरिब का दिन ही के वक्त बहुत डार्कनेस हो गई थी, इसलिए अभी फजीलत मगरिब का वक्त हुआ चाहता था, मगर 1 घंटा कबल ही तकरीबन ऐसे लगता था कि आधी रात हो गई। वहां मुझे पूछने लगे कि मुझे अंदाजा है सैयद तुम भूखे हो तो मेरे पास कुछ खाना है, तुम खाना खा लो। तो 3 रोटियां छोटी छोटी उन्होंने निकाली अपने बैग में से और 3 ख्यार, ताज़ा ख्यार कुकम्बर उन्होंने निकाले। सर्दी का मौसम था, इस मौसम में तो कूफे के अंदर ख्यार ऐसे मिल नहीं सकते थे, तरोताज़ा ख्यार। वो हमने वहाँ पर खाना खाया। फिर हम पहुँचे सहला में, वहाँ मगरिब और इशा की जमाअत उन्होंने कराई और मुझे उनके पीछे दोनों नमाजें पढ़ने की सादत नसीब। हमने अमाल बजा लाए, वो आगे आगे पढ़ते जाते थे और मैं अमाल सहला उनके साथ साथ करता जाता था। और फिर हम मुख्तलिफ मकामात से नमाजें पढ़ते हुए, अमाल बजा लाते हुए मकाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम पे दोनों बैठ गए। वहां जब बैठे तो मेरे जहन में कुछ सवालात थे। तो 11 नसीहतें उन अरब ने मुझे फरमाई। 11 नसीहतें। पहली नसीहत ये की कि सैयद जब तुम इस्तिखारा देखते हो तस्बीह का और 1 दाना बाकी रह जाए तो फौरन न कहो कि इस्तिखारा ठीक है, दोबारा इस्तिखारा देखो। अगर दोबारा 2 निकले तो बहुत अच्छा है, दोबारा 1 निकले तो दरमियाना है। ये पहली नसीहत इस्तिखारा के बारे में फरमाई। दूसरी नसीहत फरमाई कि सैयद आज के बाद फजर के बाद सूरह यासीन को कभी मिस ना किया करो, हमेशा सूरह यासीन पढ़ा करो फजर की नमाज के बाद। जोहर के बाद अम्मा यतसाअलूना अनिन नबइल अज़ीम की तिलावत किया करो। असर के बाद सूरह नूर की तिलावत किया करो। मगरिब के बाद सूरह मुबारक वाक़िआ की तिलावत किया करो और इशा के बाद सूरतुल मुल्क की तिलावत किया करो। हमारे उस्ताद फरमाते थे उस दिन से लेकर होश में रहने तक, उनके बेटे ने भी बताया, कभी भी ये सूरतें तर्क नहीं। तीसरी नसीहत उन्होंने ये फरमाई कि हर शब में एक नमाज इशा के बाद 2 रकत पढ़ा करो। पहली रकत में जो सूरह चाहो फातिहा के बाद पढ़ो, दूसरी रकत में फातिहा के बाद वाक़िआ पढ़ा करो और जब ये 2 रकत पढ़ो तो मगरिब के बाद वाक़िआ पढ़ने की फिर जरूरत नहीं है। ये तीसरी नसीहत फरमाई। चौथी और 5वीं नसीहत में 2 दुआएं मुझे तालीम दी जो मुझे हिफ्ज हो गई और वो फरमाते थे कि उम्र भर में पढ़ता रहा। जो अभी तशर्रुफात उस्ताद की किताब छपी है मरअशिया, उसके अंदर ये दोनों दुआएं मौजूद हैं। उस्ताद ने हमें भी दुआएं दी थी
और अब तो किताब के अंदर भी ये दुआएं छप चुकी है। ये 4 और 5 नसीहतें हो गई। छठी नसीहत उन्होंने शराइउल इस्लाम के बारे में की। मुहक्किक हिल्ली की किताब है शराइउल इस्लाम, जिस पर अक्सर मराजे मुज्तहिदीन दर्स से खारिज देते हैं। उसका मतन रख के वो इतनी मुतबरक किताब बनी कि उसके मतन पर अक्सर मराजे और मुज्तहिदीन अपने दुरू से खारिज देते हैं। और फिर फरमाया कि ये जो किताब है इसमें अक्सर किताब तो ठीक है, कुछ थोड़ी बहुत ऐसी चीजें हैं कि जो न होती तो बेहतर थी। ये भी बता दिया और ताकीद की कि शराइउल इस्लाम को तुम हमेशा के लिए मौरद नजर रखोगे। ये 6 नसीहतें करने के बाद 7वीं नसीहत उन्होंने बड़ी अजीब फरमाई। उन्होंने कहा 24 घंटे में एक फातिहा उनके लिए जरूर पढ़ा करो जिनका पढ़ने वाला कोई नहीं या जिनके पढ़ने वालों को तवज्जो नहीं, तौफीक नहीं। लिहाजा ये नसाहे पंदो नसाहे वो फरमा रहे हैं। कुछ मेरे जहन में थी बातें, सवाल करने से पहले ही उन्होंने बता दिया। और मुझे नहीं मालूम कि ये कौन है, मेरे बिल्कुल जहन में नहीं है। मैं यही समझ रहा हूं कोई अरब आ रहे होंगे सहला में, कोई फाजिल आदमी है, जवान आदमी है। उन्होंने इसके बाद तहतुल हनक के बारे में फरमाया, तो हमने भी देखा, हमेशा उनको देखा। हत्ता कि मैंने तो उनको जब आराम फरमा रहे होते थे उस वक्त भी मैं गया हूं आराम वाले कमरे में भी, तो मैंने देखा कि जिस तरह उनको उस अरब बुजुर्गवार ने बताया था वो सारी जिंदगी वैसे ही तहतुल हनक रखते थे जैसे उनको बताया गया था। जैसा कि आपको याद होगा जब आप मैयत को सुलाते हैं तो किस तरह तहतुल हनक, वो उसी तरह तहतुल हनक सारी जिंदगी नमाज में भी उन्होंने उसे बरकरार रखा। ये 8 नसीहतें करने के बाद 9वीं नसीहत फरमाई कि ज़ियारत आशूरा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में पाबंदी करो। और उस्ताद फरमाते थे ऑलमोस्ट 70-75 साल तक मैंने कभी भी ज़ियारत आशूरा को मिस नहीं किया। फिर मैंने कहा कि मुझे दुआ दीजिए, तो ये दुआ मुझे दी, यानी मेरे लिए दुआ कीजिए। तो मुझे ये दुआ दी, हाफिज़कल्लाहु मिन शर्रिल अशरार, ऐ सैयद अल्लाह तुझे शरारतियों के शर से महफूज फरमाए। ये शरारतियों का शर हम सब के लिए ये दुआ है। अल्लाह हम सब को शरारतियों के मिनल जिन्नत वन नास, ये शैतान कमीने सारे के सारे डिटेन है रमजान में, मगर शरारती डिटेन नहीं है। उनका कभी भी उनको बांड की जरूरत नहीं होती, वो हमेशा ही खुले फिरते रहते हैं। अल्लाह ताला हम सबको भी शरारतियों के शर से महफूज हो, मसून हो, मामून फरमाए। मैंने सवाल किया कि ये फरमाइए बुजुर्गवार, ये फरमाइए, तालिब इल्म है, जवान है, कहते हैं ये फरमाइए कि मेरी आकबत बखैर हो जाएगी। तो उन्होंने फरमाया कि तुम्हारी आकबत बखैर होगी। मैंने पूछा मेरे वालिदैन और मेरे रिश्तेदार सिला रहमी के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझसे राजी हैं? तो उन्होंने कहा तुम्हारे वालिदैन और तुम्हारे रिश्तेदार तुमसे राजी हैं। और साथ ही उन्होंने, मैंने कहा कि मुझे तसनीफ और तालीफ का शौक है, दुआ कीजिए। उन्होंने दुआ दी कि तुम तसनीफ भी करोगे, तालीफ भी करोगे और इसमें तुम्हें बरकत नसीब होगी। इसी दौरान में मैंने चाहा कि मैं उठूं किसी गरज से। मैं चंद कदम गया ही था कि मेरे जहन में ये सवाल पैदा हुआ कि ये कौन साहिब हो सकते हैं जो कभी मुझे सैयद कहते हैं, कभी मुझे शहाब कहते हैं, और मेरे जहन को ये पढ़ रहे हैं। बहुत सारे सवालात तो मैंने उनसे पूछे ही नहीं, जो मेरे जहन में सवाल आता था वो उसका जवाब फौरन देते जाते थे। और ये कौन है जो आज की शब, मुझे उस वक्त ख्याल आया कि आज आखिरी शब थी, अगर आज मैं ना आता तो ये चिल्ला तो खत्म हो जाता, फिर दोबारा 40 शब है, 4 शंबा। ये कौन मेहरबान थे कि जिन्होंने मस्जिद जैद में जब दुआ पढ़ी तो दरो दीवार छत भी दुआ पढ़ने लगी। ये कौन ऐसे मेहरबान हैं कि जिन्होंने मुझे बगैर मौसम के ख्यार
ताज़ा खिलाए हैं और इतनी मेरे साथ मेहरबानी की, मुझे इतनी दुआएं दी। तो मैंने कहा कहीं ऐसे ना हो कि यही वो हैं जिनके लिए 40वीं शब चहारशंबा में मौइद था कि 40 चारशंबा हम आएंगे, वो सहला में मिलेंगे। तो मैं फौरन लपका उधर कि मैं जाकर दस्तबोसी करूं, तो देखा वहां कोई मौजूद नहीं, जिस पर मुझे यकीन हो गया कि यही साहिबुज़्ज़मान थे जो 40 शब चहारशंबा के अमल सहला के बाद मुझे मिल गए। अब इसमें जो पॉइंट्स निकल सकते हैं कुछ वो हैं जो पहले बताए जा चुके हैं। पॉइंट्स में जो मैं अर्ज करूंगा, 23वां जरिया ये 5 सूरतों की क़राअत है 5 नमाजों के बाद। 24वां जरिया ये 2 रकअत नमाज है, 2 रकअत नमाज जो पढ़नी है, जिसमें दूसरी रकअत में सूरह वाक़िया को पढ़ना है। बाकी गुफ्तगू इंशाअल्लाह कल हो जाएगी। अल्लाह ताला आप सबको अजर व जज़ा मरहमत फरमाए, हम सबको अल्लाह मारिफत इमाम ज़माना नसीब फरमाए। बानियान मजालिस व बानियान इफ्तार से अल्लाह इस खिदमत को कबूल फरमाए, पढ़ने सुनने वालों से अल्लाह इस खिदमत को कबूल फरमाए। हमारी जो बहनें हैं जो बहुत खिदमत कर रही हैं, भाई हमारे, अल्लाह सबको अजर दे, जज़ा दे। बेहतरीन इफ्तार का एहतमाम है, बेहतरीन सहर का एहतमाम है, बेहतरीन हाज़री हो रही है। अल्लाह ताला आप सबको ये भी तौफीक दे कि डे टू डे जो एक्सपेंसेस हैं हुसैनिया के, उनमें भी आप मुआवनत फरमाएं और पे ऑफ स्कीम में भी आप मुआवनत फरमाएं। अल्लाह ताला हुसैनिया मस्जिद और अज़ा खान ज़हरा को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए और मुझे और आप सबको मौरिद लुत्फ़ व करम व तवज्जो हज़रत हुज्जत इब्नुल हसन करार दे। गुफ्तगू तमाम हो गई। आज ये भी अर्ज़ करें आपकी खिदमात आलिया में कि बानी मजलिस ने जिस अक़ीदत से आज की मजलिस रखी है, तो मैं चाहता हूँ चंद जुमले बीबी उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा के बारे में अर्ज़ करूँ। जिस तरह बीबी ज़ैनब शरीकतुल हुसैन है, बीबी उम्मे कुलसूम शरीकतो ज़ैनब है। जितनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं बीबी ज़ैनब ने, आलमोस्ट उतनी ही तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं बीबी उम्मे कुलसूम ने। और वो जुमला तो क़यामत का जुमला है कि वक्त आखिर जब इस्तिग़ासा किया था मेरे गरीब इमाम ने और गश से इफाका हुआ, नीम गशी से, हुज्जत खुदा अली इब्नुल हुसैन को, तो वो टूटा हुआ नेज़ा लेके मेरा चौथा इमाम जाने लगा है नुसरत पिदर के लिए। तो उस वक्त इमाम हुसैन ने अपनी बहन उम्मे कुलसूम से कहा था, या उम्मे कुलसूम खुदी है, नस्ल पैगंबर को बाकी रखना है। बहन उम्मे कुलसूम अपने भतीजे को पकड़ लो। उम्मे कुलसूम ने सहारा दिया था इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम को। जिस तरह बीबी ज़ैनब के सर से चादर उतरी, वैसे ही बीबी उम्मे कुलसूम के सर से चादर उतरी। जिस तरह बीबी ज़ैनब दौड़ते हुए ऊंट से, चलते हुए ऊंट से गिरी थी, लाश बिरादर पे आई थी, वैसे ही बीबी उम्मे कुलसूम आई। बीबी उम्मे कुलसूम का एक और मुसीबत का अजीब अंदाज है। बीबी ज़ैनब कहती है कि जब मैं भाई की लाश पे थी और मैं सवार कर रही थी बीवियों को, तो मैंने उम्मे कुलसूम को नहीं देखा। मैंने हर तरफ देखा कि कहाँ गई है, तो क्या देखती हूँ, गाजी की लाश के साथ लिपटी हुई है और ये कह रही है, अंतल्लज़ी अरकबतनाहीन अरदनल खुरूज मिनल मदीना। भाई अब्बास जब मदीना से निकले थे तो तुमने सवार किया था। आओ आज ज़ैनब उम्मे कुलसूम गरीब हो गई, बाजारों में खुतबे पढ़े, दरबारों में खुतबे पढ़े, और इस बीबी को ये कलक भी था कि साहिब औलाद न थी, ताकि इसकी औलाद भी करबला में काम आती। तो अबुल फजल ने कहा था, मैं आपकी तरफ से कुर्बानी दूंगा। मैं जब कुर्बानगाह में जाऊंगा तो उम्मुल बनीन की नहीं, उम्मे कुलसूम की
कुर्बानी बन के जाऊंगा। अजीजों, जब ये लुटा हुआ काफिला आया था तो बीबी उम्मे कुलसूम का ये बहन है जो आज भी रुला रहा है जमाने को। बीबी ने जब सामने नाना का शहर देखा तो बीबी ने कहा, मदीना तजत्तना ला तकबलीना फबिल हसरात वल अहजान जेना खरजना मिन के बिल अहलीना जमान रजाना फी के ला बनाता वला बनीना। नाना का शहर हमें कबूल न कर, हम इतने उजड़ के आए हैं, बड़ा घर ले गए थे मगर छोटे बच्चों को भी वापस न ला सके। दोनों बहनें रोज़ा रसूल पे गईं। दोनों बहनों ने तय किया, एक बहन एक बहन करेगी, दूसरी बहन एक बहन करेगी। जो उम्मे कुलसूम ने बहन किया उसने कलेजे हिला दिए। नाना, हमें पत्थर मारने वालों ने ये भी न सोचा आखिर हम भी तो किसी की औलाद है। वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू। मातमे हुसैन